السلام علیکم۔ نکھارے آن لائن میگزین پہ خوش آمدید جی۔ دل سلطان نشا رحمان، لاسٹ ایپیسوڈ بٹ ناٹ دا لیسٹ جی۔ تو جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہے اور اینڈ میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا دوسرا سیزن آئے گا، کیونکہ کچھ کہانی کے کردار ابھی ادھورے ہیں جو کھلنے باقی ہیں۔ اور میری بات توجہ سے سن لیجیے کہ یہ ناول اب اگلے سال آئے گا۔ اس کے بعد یہ جو بھی مکمل ہوا ہے، اس کے بعد رائٹر کے 2 پروجیکٹس ہیں جو وہ مکمل کر رہی ہیں۔ ان کے مکمل ہونے کے بعد یہ ناول آئے گا، تو انشاءاللہ وہ سب سے پہلے ہمارے چینل پر ہی آئے گا۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اس کا سیکنڈ سیزن ہے، وہ آئے گا نئے کرداروں کے ساتھ، لیکن اگلے سال۔ چلیں جی، پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو مضبوطی سے اپنی آغوش میں بھرا۔ وہ جانتا تھا وہ خاموش رہے گی۔ اس کی وہ ننھی سی پریز مضبوط کندھے پر لیٹی مست سو رہی تھی۔ اس کی نیند بھی اس کی ماں کے جیسی ہی تھی، دنیا سے بے نیاز۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اس کی سماعتوں سے فجر کی اذان کی آواز ٹکرائی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سکون بھرے الفاظ سنتی رہی۔ عائشہ نے کروٹ بدل کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ بالکنی سے اندر آتی اسے سفید رنگ کے پردے پورے زور و شور سے لہرا رہے تھے۔ بالکنی کی ریلنگ کے قریب کھڑا وہ اس طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ تو اس وقت نہیں اٹھتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے بالکنی تک آئی۔ عائشہ نے اس کی پشت پر رکتے اس کے کشادہ پشت پر پیشانی ٹکائی تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ آج اتنی جلدی اٹھ گئے؟ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ آئیبرو اٹھائے پوچھا۔ عبدر آئینہ ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں؟ سلطان کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ وہ گردن جھکا گیا۔ عائشہ نے تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ مقابل کیا۔ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ مسکرائی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ہوں نا، میں سکھا دوں گی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے چل دیا۔ اب اسے چلنا تھا، ساری عمر یہیں انہیں ننھے قدموں کے نیچ پیچھے۔ عائشہ نے اس کے کف کونیوں تک فولڈ کیے۔ وہ اسے دیکھتا اس کی نقل کرتا وضو کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال سنوارے، اور وہ اس کے سر پر رومال باندھ چکی تھی۔ وہ اسے ہر کام کرتا بغور دیکھ رہا تھا۔ چائے نماز پر کھڑا وہ انجان سی نگاہیں اس پر دوڑا گیا۔ وہ اپنا حجاب درست کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بس میرے پیچھے ہر لفظ دہراتے جائے، جو میں پڑھوں وہی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ نیت باندھتی شروع ہوئی تو سلطان کو اس کے وجود میں گہری لرزش محسوس ہوئی۔ اونچی آواز میں آیات کا ورد کر رہی تھی، اور اس کے منہ سے ادا ہوتا ہر لفظ دہراتا وہ مضبوط وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تپتے ہوئے آنسوؤں کی روانی میں شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ رک نہیں پا رہا تھا، وہ تھم نہیں رہا تھا، وہ بول رہا تھا، اور اسے سکون مل رہا تھا۔ اللہ اکبر! وہ جھکی تو سلطان کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ ایک پل کا مدھم سی آواز ابھرتی، اور اس کے عین بعد وہ مضبوط اور سسکیوں سے بھرپور آواز لکڑی کے اس کمرے میں گونج جاتی۔ وہ سجدہ ریز ہوا تو اس کی اکڑوں پیشانی اور مغروب ناک اس سجدے میں ہی کہیں گھل کر رہ گئی تھی۔ وہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سلام پھرتے اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ سجدہ ریز ہوا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں دھیرے دھیرے بلند ہوتی گئیں۔ ان خوبصورت آنکھوں میں ابھرتی نمی اس کی جیت کا پیغام تھا۔ عائشہ نے جھک کر اس کی سر کی پشت پر ہاتھ رکھتے دھیرے سے سہلایا۔ یا اللہ! سلطان کی آواز بلند ہوئی۔ میں ہار گیا اللہ! وہ جھک کر اس کی پشت پر سر رکھ گئی۔ وہ خاموش تھی اور وہ خوش بھی، اور وہ اس وقت اس کے آنسو نہیں پہنچنا چاہتی تھی، وہ اسے بہنے دینا چاہتی تھی۔ وہ آنسو اس کی حدود تھے، وہ حدود جسے وہ توڑنے سے ڈرتا تھا، وہ آج اسے توڑنے دینا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سجدہ ریز ہوا اپنی ہار تسلیم کرتا رہا۔ عائشہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس مضبوط پیشانی پر لب رکھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے لگاتے اسے اپنے حصار میں بھرا تو اس کے وجود سے تکلیفوں سمیت تمام پریشانیاں، تڑپ، محرومی اور کسک نکل کر فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس وجود میں بچا تو صرف عشق، وہ عشق جو امر ہو جاتا ہے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو سلطان اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ اس نے اپنی بڑی سی ہتھیلی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نیچے رکھتے ہوئے بلند کی۔ اللہ جی، بے شک آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ بلند و اعلیٰ ہیں۔ ہمیں ایک پرسکون اور خوشیوں سے بھرپور زندگی عطا فرما۔ ہمیں تمام زندگی تیرے صبر اور شکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک تو تھام لینے والا ہے۔
वो बोल रही थी और उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंदे दिलचस्पी से सुन रहा था। सुल्तान की आंखों से निकलते आंसू उसके कंधे में ही कहीं जज्ब हो रहे थे। आप कुछ नहीं मांगेंगे? वह रुककर उसे देख रही थी। सुल्तान ने उसके कंधे से चेहरा निकालकर उसे देखा। या अल्लाह, मेरी बीवी की हर दुआ कबूल फरमा। वो खुलकर मुस्कुराई। इस बड़ी सी हथेली समेत चेहरे पर हाथ फेरते वो खुश और मुतमईन हुई। इस मजबूत शख्स ने सन्नी सी गोद में सर रखा और वो सुकून की वादियों में उतरता चला गया। अपने बालों में वो नाजुक सा लम्स महसूस करता वो आखिर को गहरी नींद में जा चुका था। वो पुरसकून और हर फिक्र से आज़ाद एक दुनिया फरामोश कर देने वाली नींद। वो उसे यूं बेखबर सोते देखकर शरीर सा मुस्कुराई। ईशा ने धीरे से आंखें मूंदी और गहरी सांस भर गई। शुक्रिया अल्लाह जी, आपसे तिजारत करना मेरा पसंदीदा काम है। वो हंसे और इसकी वो मध्यम सी हसीन समातों से टकराए और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नुमाया हुई। सुल्तान की हफ्तों की मेहनत आज रंग लाई थी। वो इसका हाथ थामे एक कुशादा जगह के बाहर खड़ा था और वह सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं अब्दुल? बताता हूँ, आओ। सुल्तान ने उसकी कलाई थामी और एक बड़ी सी शाप के सामने आ रुका। इस शाप के बाहर कुशादा अल्फाज में एक तहरीर कलमबंद थी, रोशनी और खुशी। ईशा ने चहक कर उसे देखा। वो इससे कलाई आज़ाद करवाती इस कुशादा दरवाजे के करीब आ रुकी। उसे हैंडल घुमाया और वह दरवाज़ा खोलता गया। वो एक कदम अंदर दाखिल हुई तो बुलंद आवाज़ में चीख उठी। वो एक कुशादा पुर नूर से फूलों की दुकान थी। क्या ये? उसने मुड़कर देखा। वो दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उसे देख रहा था। ये तुम्हारी है। वो उछलती हुई इस शॉप में दाखिल हुई। जिस तरफ भी उसकी निगाह पड़ती हर तरफ खुशबू और रंगों से भरपूर फूल उसकी बिनाई में कैद हो रहे थे। अब्दुल, ये कितनी खूबसूरत जगह है। दुनिया में मेरी छोटी सी जन्नत। वो उछल रही थी। सुल्तान ने उसे बढ़कर थामा। इस पागल सी लड़की ने उसके गिर्द अपना हिसार तंग करते उसे मजबूत कंधे पर लब रखे। क्या ये सच में हमारी शॉप है? उसने सरस बात में हिलाया। हाँ अब्दुल, बहुत अच्छे हैं, कसम से आप बहुत अच्छे हैं। वो खुलकर हंसा। वो एड़ियाँ उठाती उसकी पेशानी पर लब रखे। सुल्तान ने दोनों आईब्रो उठाए। अब यकीन हो गया कि मैं वाकई अच्छा हूँ। वो खुलकर हंसी। वो मुड़ी और अपनी ड्रीम शॉप में हर तरफ घूमती अपनी रोशनी और खुशी इस खूबसूरत शॉप में बिखेरती इस पागल से आदमी की ज़िंदगी को खूबसूरत बना रही थी। ब्राउन कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने वो स्ट्रॉन्ग सी लड़की आज मुकम्मल दुल्हन बन चुकी थी। उसके ऐन करीब खड़ा हाथी एक नज़र उसे देखता और आईगो की तीखी निगाह देखने पर मुस्कुराहट दबा जाता। सुल्तान और ईशा की इस नन्ही सी परी को थामने वाले हाथों की तादाद इतनी थी कि इन्हें दो पल भी उसे देखना नसीब न होता। ईशा ने एक भरपूर निगाह अपने साथ खड़े इस लंबे चौड़े आदमी पर दौड़ाई। शादी तो हादी भाई की है ना? सुल्तान ने उसे देखा। तो आपको इतना सजने की क्या ज़रूरत थी भला? दूल्हे से ज़्यादा तो आप हैंडसम लग रहे। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हारा शौहर है ही इतना हैंडसम, ज़रा सा तैयार हो जाए तो दूल्हा लगता है। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। वो इसके कंधे पर धप रसीद कर गई। खुश फहमी। हाँ। वो रुख मोड़ते इधर उधर देख रही थी। इसके शौहर पर वहाँ मौजूद कई लड़कियों की नज़र थी जो उसे चुभ रही थी। सुल्तान या गीत और हादी एक तरफ खड़े अपनी ही बातों में मगन थे। कितना हैंडसम है ना वो। एक नंबे से कद की लड़की जो इस मगरूर इंसान को फुर्सत से देखने में मसरूफ थी अचानक अपने कंधे के करीब से उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। वो प्यारी लड़की दोनों हाथ कमर पर बांधे मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हाँ यार, कितना हैंडसम बनता है वो। मैं भी उसे कब से देख रही हूँ। ईशा ने उसके कंधे पर बाजू रखा। चलो ना, चलकर उससे बात करते हैं। शायद हमें से किसी एक की किस्मत खुल जाए। उस लड़की ने एक नज़र उसे देखा और वो हंस दी। वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो ट्राई करते हैं। वो गहरी सांस भरती इसके पीछे चल दी। मरहबा। सुल्तान को अपनी पुश्त से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ा। सुल्तान ने दोनों आईब्रो उठाए। इस लंबी लड़की के साथ कमर पर हाथ बांधे खड़े वो शरीर सा मुस्कुरा रही थी। मरहबा। सुल्तान ने मुस्कुराहट दबाई। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? ज़रूर, क्यों नहीं, थोड़ी देर। आप जितनी देर चाहें कर सकती हैं। ईशा की मुस्कुराहट गायब हुई। वो लड़की मुस्कुराती हुई सुल्तान के करीब जा खड़ी हुई। तो मुकाबले इस प्यारी सी लड़की ने बमुश्किल खुद पर जब्त किया। वो अपने कदम मोड़ते आईगुल के करीब जा खड़ी हुई। वो इन्हें देख रही थी। सुल्तान इस लड़की से बात करने में मसरूफ़ था। रहीम शाह ने बढ़कर इसके सर पर हाथ रखा तो वो पलटकर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। मरहबा आगा जान, मरहबा। वो मुस्कुराया। इसने शाह का हाथ थामते लबों से लगाते पेशानी से टिकाया। खुश रहो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो किस लिए? तुम जानती हो। वो मुस्कुराई। मेरी हम दुआएं हमेशा तुम सबके साथ है मेरे बच्चों। आईगुल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। शादी का इख्तिताम हुआ तो वो सुल्तान की हमरा वहाँ से निकली।
आयत इसकी गोद में ही सो गई थी। वो खामोश थी। सुल्तान ने इसका हाथ थामा। उसने एक झटके से अपना हाथ वापस खींचा। वो मुस्कुराहट दबा गया। आपकी सेटिंग हो गई क्या? वो खुलकर हंस दिया, जबकि वह संजीदा चेहरा बनाए उसे देख रही थी। मेरी सेटिंग तो बहुत अरसा पहले ही हो चुकी थी ना। हाँ, इसीलिए आप बड़ी लंबी गुफ्तगू शुनीद करने में मसरूफ थे, है ना? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया। हाँ ना, अब तुम्हारी खूबियों का बयान करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना, प्यारी बीवी। उसके संजीदा चेहरे के असाब मध्यम हुए। वह रुख मोड़ गई। पागल आदमी, पागल लड़की का। मुस्कुराते हुए गर्दन झुकाए सोते हुए इस मासूम सी गुड़िया को देख रही थी। लोगों से ज़्यादा फ्री ना हुआ करें, खासकर मेकअप शुदा लड़कियों से। और इसकी कोई ख़ास वजह? ईशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। हाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब आप बाल बच्चों वाले आदमी हैं, लिहाजा ध्यान दें। सुल्तान का कहकहा पूरी गाड़ी में गूंज उठा। शाह महल की खुशियों में शाबन हर इंसान मुतमईन था। आखिर इस चुलबुले लड़के का इंतज़ार मुकम्मल हुआ। आइगल की कलाई थामे वो कमरे में दाखिल हुआ ही कि उसने एक झटके से उससे अपनी कलाई आज़ाद करवाई। अरे यार गुल, तुम अभी तक मुझसे खफा हो? अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है, तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? वो तीखी निगाह से उसे देखते फासले पर हुई। वो करीब हुआ तो आइगुल ने जोर जोर धक्का देते हुए उसे खुद से दूर किया। हादी की मुस्कुराहट गहरी हुई। जब गुस्सा करती हो तो कसम से मर मिटता हूँ तुम पर। अपनी बकवास बंद करो और मुझसे। इसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही हादी ने स्पीड लगाकर उसे अपने बाजुओं के हिसार में जकड़ा। छोड़ो मुझे बेअकल इंसान, मैंने कहा छोड़ो। वो हंसता हुआ अपना गिरफ्त मजीद तंग कर गया। ये बेअकल इंसान अब तुम्हारे पल्ले से बन चुका मिस ड्रैकुला। अब मेरी बेअकली की आदत डाल लूँ। हादी, मुझे अभी और इसी वक्त छोड़ो। ना छोड़ूं तो? वो गुस्से से उसे देख रही थी। अरे यार, माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी। तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। बस एक दफ़ा माफ़ कर दो ना अब। आइगुल ने एकदम अपनी मसाहमत बंद की। उसके कंधों पर हाथ रखती बगौर उसे देख रही थी। देख लें, जो मैं कहूँगी वो फिर करना पड़ेगा तुम्हें। तुम हुक्म करो मेरी चुड़ैल। तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? हादी ने बच्चों की तरह सर इस बात में हिलाया। ठीक है, चलो फिर प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? यही कि जो मैं कहूँगी तुम वही करोगे। वो इसका हाथ थाम को लबी से लगातार पेशानी से टेक गया। मैं वादा करता हूँ गुल, जो तुम कहोगी तुम्हारा शौहर वही करेगा। आइगो की मुस्कुराहट नुमाया हुई। शौहर? वो हंसी। हाँ शौहर। वो हंस रही थी। अरे हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर ही तो हूँ अब। वो हंसी। वो इसके कंधों पर हाथ चढ़ गई। सुनकर अजीब लग रहा है, तुम और मेरे शौहर। हादी ने संजीदा चेहरा बनाया उसे देखा और अगले ही पल वो हंस दिया। हाँ तो अब मैं मानता हूँ ना तुम्हें। इस चुड़ैल को अपनी बीवी तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ मान लूंगी, मगर पहले एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। कहो। वो करीब हुआ। तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो तो जाओ और इस पुराने लॉकर से वो ख़ास चाबी निकाल कर लाओ और गराज में खड़ी इस पुरानी। अरे यार! वो एक पल में उससे फासले पर हुआ। आएगा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, आगा जान मुझे मार देंगे। वो दोनों हाथ आपस में बांध गए। तुम वादा कर चुके हो अब? हादी ने दोनों हाथ सर की पुश्त पर रखते रुख मोड़ा। प्लीज़ तुम कुछ और कह सकती हो। बिल्कुल नहीं, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, वो भी आगा जान की इस पुरानी फरारी में। मुकाबिल इंसान बस कुछ ही पलों में रो देने वाला था। रहम करो मुझ पर, क्यों तुम शादी की पहली रात ही बेवा होना चाहती हो लड़की? वो हंसी। मुझे अफसोस नहीं होगा। अब जाओ और चाबी दो, मैं तब तक ज़रा अपना हुलिया दुरुस्त करूं। वो मुड़कर मिरर की तरफ मतवज्जो हुई। हादी ने चेहरे पर हाथ फेरते थूक निकला। जाओ। वो पलटकर इससे कमरे से बाहर धकेलती दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। हादी ने एक गहरी सांस भरी। वो जानता था अब वो किसी सूरत अपना इरादा नहीं बदलने वाली। चेहरे पर हाथ फेरता वो चल दिया। इस बड़े से कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा वो खुद में ढेरों हिम्मत बांध रहा था। या खुदा, मैं समझ गया कि लोग क्यों कहते हैं शादी एक बर्बादी है। अल्लाह मेरी हिफाजत करना। वह गहरी सांस भरता रुककर एक सैल्यूट हवा में बुलंद करता धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। इस किंग साइज बेड पर वो उम्र रसीद शख्स गहरी नींद सो रहे थे। उसे देखते हाथी ने थूक निकला। जमीन पर बैठता हथेलियों और घुटनों के बल चलता हुआ बेड के किनारे तक पहुंचा। इस सोए हुए शख्स ने करवट बदली तो हल्की सी आवाज़ बुलंद हुई। हादी की आधी जान ऊपर और आधी उनकी हथेलियों में ही कहीं अटक गई। वह ज़मीन पर तकरीबन लेट ही गया था। मैं मर गया मैं, आज नहीं बचूंगा। वो दिल ही दिल में तेज़ बड़बड़ा रहा था। कुछ पल बाद उसने बेड के किनारे से आंखें निकालते देखा। वो सो रहे थे। तशक्कुर भरी सांस खारिज करता वो उठकर अलमारी तक आया। मतलूबा चीज़ हासिल करता वो 525 की स्पीड से वहां से निकला था।
رحیم شاہ کے زمانے کی وہ پرانی فراری تھی تو اولڈ ماڈل، مگر اس زمانے میں بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سڑکوں پر دوڑاتی وہ شاہکار آئیگل کی بلند ہنسی کو مزید چھلکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے ہمراہ اس لانگ ڈرائیو کو انجوائے کرتی رہی۔ گاڑی لان میں داخل ہوئی تو ہادی نے اس کی سپیڈ انتہائی سلو کر دی۔ اسے مطلوبہ جگہ پارک کرتے وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے اس مضبوط شخص پر نگاہ پڑتے ہادی کی اڑی ہوائیاں فک ہوئی۔ آئیگل کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہوئے۔ رحیم شاہ نے قریب آتے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ہادی نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے چابی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھی۔ ایک تیکھی نگاہ ان پر ڈالتے وہ قدم موڑتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اس چلبلے لڑکی کی اٹکی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئی۔ آئیگل کی ہنسی بلند ہوئی۔ شکر مناؤ چڑیل، کس بات کا؟ تم بیوہ ہونے سے بچ گئی۔ آئیگل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ الو کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی اپنی بڑی سی فراک سنبھالتی تیز تیز چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا تشکر بھری سانس بھر رہا تھا۔ آج اس کی شادی کا دن نہ ہوتا تو یقیناً اس کی آج تندوری بننے میں دیر نہ لگتی۔ آرفن ہوم کی چڑیوں کو اتنی آزادی تو مل چکی تھی کہ وہ دونوں اب دن کے وقت آئیگل خاتون سے ملنے جا سکتی تھی۔ حنا کا ہاتھ تھامتی وہ تیز لڑکی شفا آنٹی کو اطلاع کرتے اپنے گھر سے باہر نکلی تھی۔ فدار، پہلے عشاء کی شاپ میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد گول آنٹی کے پاس، کیا کہتی ہو؟ فدار نے مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اس پورنور شاپ کی طرف بڑھ گئی۔ 2 سال کی وہ ننھی سی لڑکی اپنی عمر کے برعکس بہت جلد ہی باتیں کرنے اور چیزوں کو سمجھنے میں کافی تیز ہو گئی تھی۔ بس وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی۔ اسے چلنے میں ہلکی سی دشواری ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سہارا ڈھونڈتی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے اور اسے اپنے پاؤں پر چل سکے۔ عشا نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے اشارہ کیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فدار اور حنا کے ہاتھوں میں اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں تھیں اور وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے پلا بیٹھا۔ فدار نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو حنا نے بھی اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ وہ توازن برقرار رکھتی دھیرے دھیرے چلتی سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آؤ، آ جاؤ بابا کے پاس۔ وہ مسکراتا اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے لڑکھڑاتے قدم سنبھالتی اس کے قریب آتی مضبوط باہوں میں گر چکی تھی۔ سلطان نے اسے سنبھالتے ایک گہری سانس بھری کہ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوئی۔ وہ ان دونوں کے قریب بیٹھتی انہیں تھام گئی۔ وہ چل رہی تھی عشا، وہ اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ ہاں میری بیٹی۔ سلطان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ عشا نے اس کے آنسو سمیٹتے اس کے بالوں کو سہلایا۔ وہ جلد چل سکے گی عبدر۔ فدار اور حنا کی کلیپ ابھری۔ وہ دونوں انہیں دیکھتی خوش ہوئی تھی۔ آئیگل کی آمد کی خبر سنتے سلطان اسے گھر ڈراپ کرتا آیت کو لیے دوبارہ سے اپنی شاپ میں آ چکا تھا۔ فدار اور حنا عشا سے ملتی اس کی شاپ سے نکلی۔ سلطان نے اسے کچھ پھولوں کے گلدانوں کے بیچ بٹھاتے ایک سفید رنگ کا پھول اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ لو اس سے کھیل دو۔ وہ اسے تھامتے خوش ہوئی۔ شکریہ بابا، وہ بولی تو سلطان نے جھک کر اس کے چھوٹے سے ہاتھ تھامے اور اسے اپنی آنکھوں سے لگائے۔ شاپ کی گھنٹی بجی۔ سلطان نے نظر مڑ کر دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش آمدید۔ مرحبا جوان۔ یگی نے جھک کر آیت کو تھامتے پیار کیا اور واپس رکھتے ہوئے سلطان کی طرف متوجہ ہوا۔ مرحبا، آج کیسے تجھے فرصت مل گئی؟ حلیہ اور ساحر کیسے ہیں؟ بالکل فٹ، الحمدللہ۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یگی اسے دیکھتے شریر سا مسکرا رہا تھا اور سلطان اس کے آرڈر کے مطابق پھولوں کا بوکے بنانے میں مصروف تھا۔ ہائے کتنا مزے ہیں قسم کے۔ کس بات میں؟ تجھ سے کام کروانے میں۔ دیکھ ذرا، ترکی کا لیجنڈ مافیا کتنے پیار سے اپنے دوست کے لیے پھولوں کا بوکے بنا رہا ہے۔ اس سے خوبصورت بھی سین بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی قسم سے۔ سلطان نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بکواس نہ کر کمینے، ورنہ کمینہ۔ اپنے عقب سے مدھم سی آواز سنتا وہ پلٹا۔ وہ ایک ہاتھ میں پھول پکڑے اس کی ایک ہاتھ کی انگلی سے یگی کی طرف اشارہ کیے کھڑا تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ سلطان نے اسے دیکھتا کہا۔ بابا نے کہا انکل کمینہ۔ سلطان نے بوکے ایک طرف پھینکتے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ وہ ایک پل میں اس کے مقابل گھٹنوں کے پلا بیٹھا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کمینہ، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ارے بیٹا پلیز خاموش ہو جاؤ، آپ کی ماما نے سن لیا تو میری ہڈی پسلی کر دیں گی۔ یہ گیت کا کہکا بلند ہوا تو سلطان نے خونخوار نگاہ اس پر دوڑائی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بابا نے کہا۔ سلطان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کہو گی تو بابا آپ کو آئس کریم لا دیں گے۔ آئس کریم؟ وہ چہک اٹھی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 آئس کریم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنا مطالبہ بڑھایا تو سلطان نے مسکین سی صورت بنائی۔ ماں پر ہی جانا بیٹا، شاباش۔ یقین کی ہنسی بلند ہوئی۔ تو چپ کر، کم۔ وہ رکا، کمینہ۔
यगीत ने बुलंद आवाज में कहा तो सुल्तान उसकी तरफ लपका। चल निकल यहाँ से, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वो उसे धकेल रहा था और बुलंद आवाज में हंस रहा था। बेटा, आपके बड़े सबसे बड़े कम। सुल्तान ने उसके मुंह पर हाथ रखते उसके लफ्ज दबाए। दफा हो, दफा हो यहाँ से। अरे यार, मेरा बुके वो तो दे दे। सुल्तान ने उसे शॉप से बाहर दिखेना। ना तुझे यहाँ से मिलेगा, ना ही तो रिक्की की किसी शॉप से भी। अरे ना कर यार, बिना फूलों के घर गया तो वो मेरी वाट लगा देगी और मुझे इससे कौन मिलेगा, कमीने इंसान। खाली हाथ घर जा और मार खा। वो दरवाज़ा बंद कर चुका था। यगी ने दोनों हाथ सर पर रखते अपनी शामत से बाखबर होते गहरी सांस भरी। बेटा, आपके बाबा एक नंबर के कमीने हैं, सुना आपने? कमीने। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया तो सुल्तान ने इसके कानों पर हाथ रखते हंसी दबाई। बाबा आपको 3 नहीं ढेर सारी आइसक्रीम दिलाएंगे, मगर वो लफ्ज़ दोबारा नहीं कहना। ठीक है, ढेर सारी आइसक्रीम। वो आंखें मुकम्मल खोलती उसे देख रही थी। ढेर सारी। सुल्तान ने दोनों बाहें फैलाईं। ओके। वो खुश हुई। डील? सुल्तान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। डील। उसने उसका हाथ थामा। वो मुस्कुराता हुआ उसे उठाए शॉप से बाहर निकला था। फदार, हमें गुलदानटी के लिए कोई तोहफा लेना चाहिए। हम ऐसे खाली हाथ जाएंगे तो कितना अजीब लगेगा। कसम से मैं भी यही सोच रही थी, है ना? हमारी सोच कितनी मिलती है ना। हाँ जाहिर है, अब तुम्हारी संगत का असर तो पड़ चुका है ना। वो हंसी। वो दोनों सड़क क्रॉस कर रही थी और फदार ने हमेशा की तरह हना का हाथ मजबूती से पकड़ा था। एक माल में दाखिल होती वो दिनों इधर उधर फिरती कोई एक चीज़ फाइनल करने में नाकाम हो रही थी। चलते हुए अचानक फदार से एक स्मार्ट सी उधेड़ उम्र की खातून टकराई। ओह, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। फदार ने माजरत करते कदम बढ़ाए जबकि इस औरत ने इसके साथ खड़ी इस लड़की को बगौर देखा जिसका ध्यान इसकी तरफ कम माल की चीज़ों पर ज़्यादा था। कोई बात नहीं। इस औरत ने फदार के बाल थामे इन्हें कान के पीछे अड़स दिया और एक भरपूर निगाह दोनों पर डालती अपने कदम बढ़ाए। चलते हुए इस औरत ने एक दफ़ा फिर मुड़कर देखा तो इसकी नज़र हना पर पड़ी और अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। आयरगुल आंटी के लिए वो दो खूबसूरत से स्कार्फ लिए वो दोनों माल से बाहर निकलकर अपनी मतलूबा जगह की तरफ चल दी। वो अपनी गली से कुछ गलियों की दूरी पर ही थी कि अचानक फदार को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा मगर वहाँ पर कोई नहीं था। वो सर झटकते चल दी मगर कुछ पल बाद ही इन दो छोटी लड़कियों को अपने चेहरों पर अजीब से हाथ महसूस हुए। देखते ही देखते इनके हवास गुम हुए और इनने सामने का मंजर धीरे धीरे धुंधला होता गया। फदार को बेहोश होते में वक्त लगा था। वो मजामत करती इस आदमी के गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम रही। हॉल में दाखिल होते सुल्तान ने एक नज़र आसपास देखा। इसकी रोशनी उसकी आंखों के सामने मौजूद न थी। आयत अपने हाथ में मौजूद आइसक्रीम को मज़े से खाने में मसरूफ थी और सुल्तान के हाथ में इसका बकिया सामान था। मरहबा, आप आ गए? अरे ये क्या? अब तो मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है उसे आइसक्रीम मत दिलाया करें। दांत देखे आपने इसके? वो खफा हुई। वो मुस्कुराता हुआ उसे उसके हवाले कर गया। बस आज के दिन माफ़ कर दो। ईशा ने इसके हाथ से शॉपिंग बॉक्स पकड़ते टेढ़ी निगाहों से उसे देखा। मामा, जी मेरी प्यारी बेटी। वो मुस्कुराया। बाबा ने आइसक्रीम दिलाई, अब कमीना नहीं कहना। सुल्तान की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। ईशा ने बिजली की तेज़ी से उसे देखा। वो लब भेंच गई। सुल्तान ने दोनों हाथ सर पर रखते रुक मोड़ गई। मर गया आज तू। वो लब दबाता मंजर से धीरे धीरे खिसक चुका था। वो किचन में आती उसे आईगल के हवाले कर गई। बस बेटा 1 मिनट, मैं अभी आती। आपके बाबा को खुशामदीद कह लूँ। वो कमरे में दाखिल होती दोनों हाथ उसकी तरफ करती बड़ी ही कि सुल्तान ने इसकी दोनों कलाइयाँ थामी। आप इस तरह से उल्टे लफ्ज़ उसे अभी सिखाना शुरू हो गए हैं। इतने बड़े हो गए हैं आप और अभी तक अकल आपके करीब से भी नहीं गुजरी, पागल इंसान। वो इस पर झपट पड़ी थी। अरे अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनिए आपकी बात, वो भी बड़े अच्छे से। वो हंसा। ये मेरी गलती नहीं थी। वो यगीत का बच्चा कमीना 1 नंबर का है। ईशा ने एक जोरदार मुक्का इसके मसल पर जड़ दिया। आपकी अपनी जबान तो बड़ी खूबसूरत है ना। वो हंसा। हंसी आ रही है आपको? वो इसकी तरफ बढ़ी। सुल्तान अपनी जगह से 2 कदम पीछे हुआ। अरे यार, इतना गुस्सा कहाँ से आता है तुम्हारे पास? आप ही का खून हूँ। गुस्से से कहती वो उसे धकेलती करीब हुई। आज के बाद अगर मैंने आपके मुंह से या इसके मुंह से कोई ऐसा उल्टा लफ्ज़ सुना तो ज़बान काट कर हाथ पर रख दूंगी। वो गर्दन मुकम्मल उठाए गुस्से से बोली तो सुल्तान ने दोनों हाथ उठाते इस बात में सर हिलाया। वो हाथों की सिप बनाता होंठों पर फेर गया। एक वसूली निगाह उसे देखती वो कमरे से बाहर हुई। सुल्तान ने टाई की नौक ढीली की। बात तो ठीक ही, मेरा खून ही हो तुम तो मेरे जैसी ही जंगली होगी ना चुड़ैल बीवी। सुन रही हूँ मैं। उसकी आवाज़ पर वो खुलकर हंसा। फदार की आंख खुली तो उसने अपने आसपास देखा। वो इस वक्त एक कुशादा कमरे में मौजूद थी।
उसने बमुश्किल उठते अपने साथ बेसुध पड़ी हना को देखते तेजी से बढ़कर उसके सीने पर सर रखा। वो गहरी सांस भरती उसे कंधों से थामते झंझोड़ रही थी। हना, उठो, अरे उठो यार। उसकी आंखें धीरे से खुली। फदार, हाँ मैं यही हूँ, तुम ठीक हो? उसने सर इस बात में हिलाया। हम कहाँ हैं? मैं नहीं जानती। हना उठकर इसके करीब हुई। फदार, मुझे डर लग रहा है। हम कहाँ हैं और वक्त क्या हुआ है? शिफा आंटी वो परेशान हो रही होंगी। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी जबकि फदार हमेशा की तरह अपना तेज दिमाग काम में लाने की कोशिश करती अपनी जगह से उठी। एकदम ही कमरे का दरवाज़ा खुला। हना बेड से उतरती फदार के साथ चाप चुपकी। तुम? अंदर दाखिल होती औरत को देखते ही हना ने बुलंद आवाज में कहा। हमेशा की तरह फुल मेकअप किए वो उधेड़ उम्र खातून हना को देखकर मुस्कुराई। कैसी हो मासूम लड़की? बहुत अरसे बाद देखा तुम्हें। तुम तो मजीद खूबसूरत हो गई हो। वह हंसी तो फदार ने सवालिया निगाह इन दोनों को देखा। क्या तुम इसे जानती हो हना? हना की आंखों में आंसुओं की बरसात नुमाया हुई। वो कैसे भूल सकती थी इस घटिया औरत को, इस मकरू हंसी को, इस हवस परस्त आंखों को। वो सहमी हुए फदार ने कंधे से चा चिपकी। फदार, फदार मुझे बचा लो, मैं दोबारा इस बुरी जगह नहीं जाना चाहती। वो हिचकियां बढ़ती बोली तो फदार के असाब एकदम से तन गए। वह समझ चुकी थी कि मुकाबिल औरत कौन है। इस औरत की हंसी बुलंद हुई तो हना की आवाज़ उससे भी बुलंद हुई। वो फदार को खींचकर इससे दूर करती हना को बालों से जकड़ चुकी थी। तुमने बहुत ख्वार करवाया लड़की, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। अपनी बात के इख्तिताम पर उसे अपने गले पर एक गिरफ्त महसूस हुई। फदार के होते हुए हना को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, घटिया औरत। वो अपने स्कार्फ को उसके गले के गिर्द लपेट कर खींचना शुरू हो चुकी थी। उसकी गिरफ्त से आज़ाद होती हना लरसते कदमों को कोने से कदमों से कोने में जा लगी। वो हिचकियों से रो रही थी। अपने सामने का मंजर देखती वो कांप रही थी। फदार की गिरफ्त से वो खातून अपना आप छुड़ा नहीं पा रही थी। हना, जल्दी, मुझे मदद चाहिए। फदार बुलंद आवाज़ में बोली थी। उसकी आवाज़ एक 13 साल की लड़की की नहीं थी। वो आवाज़ काफ़ी बुलंद और भारी थी। इस आवाज़ में खौफ था। उसकी आवाज़ सुनती वो मजीद कोने में छुपी। डरना बंद करो हना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहादुर हो। मेरी मदद करो। ये वही औरत है जिसने तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन ली थी। तुम क्या अब भी उससे डरोगी? हना बखौर उसकी आंखों को देख रही थी। फदार की आंखें चमक रही थी। उसकी बुलंद आवाज़ पर हना के कान एकदम ही खड़े हुए। वो कोने से निकलकर उसकी तरफ भागी। वो इसके दोनों हाथों को मजबूती से जकड़ चुकी थी जो फदार की कोशिश को नाकाम बना रहे थे। फदार के हाथों की गिरफ्त मजबूतर होती जाए और इसके गले की गिरफ्त बंधा स्कार्फ धीरे धीरे तंग होता, जहां हना की सांसें मदद करने में मावन साबित हो रहा था। हना की चीखें बुलंद होती जा रही थी और फदार की गिरफ्त सख्त। आखिर देखते ही देखते इसके असाब मध्यम हुए और उसकी चलती सांसें हलक में ही कहीं अटक गई, जहां हना मज़ाहमत करना बंद हो चुकी थी। हना ने एकदम इनके दोनों बाजू आज़ाद किए और फदार की गिरफ्त ढीली हुई। इन दोनों की सांसें इस कदर तेज थी कि बढ़ती हुई धड़कनों से इनके वजूद पसीने से शराबूर हो चुके थे। फदार ने तेज तेज सांसें भरते अपना स्कार्फ इसके गले के गिर्द से हटाया। फदार, क्या वो मर चुकी है? क्या हमने उसे मार दिया? वो एक पल में फासले पर हुई। फदार ने उसकी झुककर नब्ज़ धड़कन चेक की जो बेशल हो चुकी थी। वो मर चुकी है। हना की सांसें तेज हुई। हमने इसे मार दिया। हमने एक औरत को मार दिया। हमने। फदार ने एकदम बढ़कर उसे कंधों से थामा। होश में आओ हना। क्या तुम्हें लगता है वो औरत इस दुनिया में रहने के काबिल थी? अगर हम इसे ना मारते तो जानती हो हमारे साथ क्या होता? वो इसका चेहरा थाम कर एक झटके से हिलाती साकत कर गई। इसकी आवाज़ अब वापस नॉर्मल हो चुकी थी। हना की सांसें बहाल हुई। चलो चलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि इसके आदमी यहाँ पर आ पहुँचे। फदार ने अपना स्कार्फ अपने गले की गिट लपेटा। हना ने इसे रोका। नहीं फदार, हम इसे यहाँ ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। अगर किसी को पता चल गया तो? और हम हैं कहाँ? मैंने तो ये भी नहीं जानती। फदार ने एक निगाह आसपास दौड़ाई। हम इसे यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते फदार। वो सोच रही थी। फदार ने इस औरत को देखा। हम इसे यहाँ बंद करके जा सकते हैं हना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या? अपना फ़ोन दो। हना ने हाथ बढ़ाया तो फदार ने अपने स्वेटर की जेब से फ़ोन निकालकर इसके हवाले किया। हना ने कुछ सोचते हुए एक नंबर मिलाया। तीसरी और चौथी बार पर कॉल कनेक्ट हुई। मरहबा सुल्तान भाई, हना ने कांपती आवाज़ में कहा। मरहबा, सुल्तान ने मजबूत आवाज़ में जवाब दिया। सुल्तान भाई, मैं हना बात कर रही हूँ। जानता हूँ। वो हमें आपकी मदद चाहिए अभी। वो कान से मोबाइल लगाया अपने सामने बैठी अपनी प्यारी बीवी के बाल बना रहा था। हना ने रवानी से बोलना शुरू किया तो सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी होती गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा। वो मुस्कुराता हुआ बोला।
ईशा अपने हाथ में आयत की उंगली थामे उसे अपने सामने खड़ा किया, इससे बातों में मसरूफ थी। लोकेशन चाहिए मुझे। ईशा ने उसकी जानिब रुख किया। वो आईब्रो उठाए उसे देख रही थी। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। फ़ोन कान से हटाता वो इसकी जानिब मतवज्जो हुआ। कौन था? एक दोस्त। उसे मदद चाहिए, एक ज़रूरी काम है। वो रुख मोड़ती वापस उसकी तरफ मतवज्जो हुई। सुल्तान ने उसके बाल थामकर चेहरे के करीब करते मोहब्बत भरा बूसा दिया। वो वापस से लंबे और खूबसूरत हो चुके थे। वो इन्हें थाम कर रोल करता मुकीद कर गया। सुल्तान के मोबाइल पर बीप हुई। उसने एक नज़र वो पैगाम दिखा। उसे लोकेशन मिल चुकी थी। वह मुस्कुराता हुआ उठा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। वह उस बात में सर हिलाता उठा झुका तो ईशा ने इसके सीने पर सर रखते रोका। सुल्तान ने आईब्रो उठाए। ईशा ने आयत की तरफ देखा। वो मुस्कुराया। बेटा, वो देखो आसमान में परिंदा। हाँ, परिंदा? वो रुख मोड़ती हाल के दरवाजे से बाहर आसमान पर निगाहें जमा गई तो सुल्तान ने इसकी सुकूनता पेशानी पर लब रखते तेजी से झुककर इसकी नाजुक सी पंखड़ियों कर मोहब्बत से छुआ। वो इस अचानक कार्रवाई पर संभलती उससे पहले वो तेज आदमी वहां से निकला और रुका। सुल्तान ने मुड़कर उसे देखा और नीम आंखें खोले उसे ही देख रही थी। वह 2 उंगलियां लबों से लगाकर उसकी तरफ घुमाता चल दिया। उसने माथे पर हाथ रख दिया। पागल आदमी। मम्मा, परिंदा कहाँ है? आयत ने उसकी जानिब रुख किया। वहाँ कोई परिंदा नहीं है बेटा। आपके बाबा उड़ा गए हैं जो परिंदा उड़ाना था। उसे थामती कमरे की तरफ चल दी। सुल्तान की मुस्कुराहट धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। वो मतलूबा जगह बिजली की तेजी से पहुंचा था। दरवाजे पर खटखट हुई तो हना ने तेज तेज सांसें भरते फदार को देखा। सुल्तान की आवाज़ पर फदार ने झट से दरवाज़ा खोला। इन्हें देने देखकर वो मुस्कुराया। तुम दोनों ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक हैं भाई। सुल्तान ने एक नज़र बैठ के करीब बेसुध पड़ी उस औरत को देखा। तुम दोनों तो काफ़ी बहादुर हो बच्चों। वो बढ़कर उसके करीब आ बैठा। सुल्तान जो काम अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में नहीं कर सका था वह इन 2 छोटी लड़कियों ने बस कुछ ही पलों में कर डाला था। तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों नहीं लिखी थी घटिया औरत। वो तंजिया मुस्कुराया। बहरहाल फिक्र मत करो, तुम दोनों का काम यहीं तक था। आगे मैं देख लूँगा। नीचे जाओ, वहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम लोगों को घर पहुँचा देगा। वह इस बात में सिर हिलाती चल दी। फदार ने हना का हाथ थामा और वह कमरे से बाहर हुई। शुक्रिया सुल्तान भाई। हना की आवाज़ पर वो मुस्कुराया। शिफा आंटी को सुल्तान इतला कर चुका था कि वो दोनों कुछ देर तक घर पहुंच जाएंगी। वो दोनों शाम के 8 बजे घर दाखिल हुई थी। फदार के चेहरे पर हमेशा की तरह अपनी खराफात अंजाम देने के बाद कोई तासुर नहीं था, जबकि हना की हवाइयाँ हमेशा की तरह फक थी। वो कमरे की विंडो से लगी गहरी सोच में मुब्तला थी। फदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतना मत सोचो हना, हमने कुछ गलत नहीं किया। जान बचाने की खातिर जान लेना जायज़ है। हमने किसी का कत्ल कर दिया फदार? किसी का नहीं, एक ऐसे वजूद का जो इस दुनिया में ना हो तो लाखों जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाए। हना ने उसे देखते गहरी सांस भरी। तुम कभी कभी अजीब हो जाती हो फदार। तुम नहीं लगती। फदार की मुस्कुराहट नुमाया हुई। मेरी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हो तुम तो। मैं ऐसी आवाज़ निकाल सकती हूँ जहाँ मैं इंसान जैसी नहीं लगती। हना उसे बगौर देख रही थी। उसने चेहरा खिड़की की जानिब किया तो फदार की मुस्कुराहट नुमाया हुई। इतनी जल्दी तो उसे खुद से आशना नहीं करवाने वाला था। अभी तो उसे हना के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारनी थी। हना अब दार की थी और वो अब इससे कभी जुदा नहीं हो सकती थी। अगर वो इससे जुदा होने की कोशिश भी करती तो कभी भी न होना पड़ती, क्योंकि दार से बचना नामुमकिन था। हना मजबूत है। अभी तो हमारी ज़िंदगी बस शुरू हुई है हना, और क्या पता आने वाले वक्त में क्या क्या देखना बाकी है। अभी से मत थको, तुम मजबूत हो। वो गहरी सांस भरती फदार के गले से जा लगी। मेरी ज़िंदगी में तुम ना होती तो मैं मर जाती फदार। मैं घुट घुट कर मर जाती। मैं नहीं चल पाती। फदार ने उसकी पुश्त थपकी। बस खामोश हो जाओ हना। फदार हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हर कदम पर मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? फदार हना का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसने हना के आंसू पूछे। बस अब रोना नहीं। रोगी तो मैं तुम्हें अगली पहेली नहीं दूंगी। वो रोती हुई हंसी। फदार की हंसी बुलंद हुई। तैयार हो अगली पहेली के लिए? वो आंसू पूछती सरस बात में हिला गई। तो बताओ, ऐसा क्या है जो जलकर भी जिंदा रहता है मगर हम उसे देख नहीं पाते? हना ने सर खुजाया, मगर वो जल्द या बदे ढूंढ ही लेगी। वो जानती थी उसे अपनी एक नई पहेली में उलझाकर वो तेज लड़की हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। वो भी हंस रही थी, क्योंकि इसके मुकाबले इसके साथ ही बहुत मासूम और भोली थी। वो जल्द भटक जाती थी और जल्द ही नज़रअंदाज कर देती थी। करवट बदलती इसकी आंख खुली तो उसे अपने इर्द गिर्द चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो उठ बैठी। ईशा ने आसपास देखा, वो वहां नहीं था और प्यारी सी गुड़िया अभी तक सो रही थी। अचानक ही उसे बुलंद आवाज़ें सुनाई दी। वो मुस्कुराती हुई उठी और आयत पर कंफर्टर दुरुस्त करती हार की तरफ आई।
کچن کے ساتھ بنی سیڑھیوں کے اختتام پر موجود ہال سے اسے بلند آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بال باندھتی چندی۔ ایشا نے دونوں بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلیک سلیو لیس ٹاپ اور باکسنگ گلوز پہنے وہ چھت سے لٹکے باکسنگ پیڈ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ وہ پاگل آدمی اب پہلے سے مزید اسٹرانگ اور فٹ ہو چکا تھا۔ ٹیبل پر پڑا ٹاول اٹھاتی وہ اس کے اور باکسنگ پیڈ کے بالکل درمیان میں آ کھڑی ہوئی تو سلطان کا بڑھتا ہاتھ مکا بیچ میں ہی رکا۔ سب بخیر۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سب بخیر زندگی۔ وہ شریر سا مسکرا رہی تھی۔ مسلسل پریکٹس کرتے اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ایشا نے ٹاول سے اس کا چہرہ، سینہ اور بازو صاف کیے۔ وہ دستانے اتار کر ایک طرف پھینکے۔ وہ اس کے مسلس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی آپ کے ڈمبلز جتنے مسلس دیکھ کر لگتا ہے جم ٹرینر آپ سے کلاسز لیتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ اس کے بکھرے بال درست کر رہی تھی۔ آیت اٹھ گئی؟ نہیں، سو رہی ہے۔ بس بات میں سر ہلاتا جھک کر اسے اٹھا چکا تھا اور وہ اس کے چہرے کے مقابل تھی۔ ایک پل بعد ہی اسے اپنے چہرے پر خوبصورت سی برسات محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ آپ فریش ہو جائیں، آج ناشتے کی باری میری ہے۔ وہ سرہس بات میں ہلا گیا۔ وہ کب سے کچن میں مصروف تھی۔ اسے اپنے بھاڑ سے رنگ برنگی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ آیت اپنے باپ کے سینے پر براجمان ہوئی میک اپ کی ڈھیریں چیزیں اپنے ارد گرد پھیلائے اپنی مہارت دکھانے میں مصروف تھی۔ وہ کبھی ہنستی تو کبھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مقابل کے چہرے پر اپنے رنگ جماتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ماما، بابا میری گڑیاں ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تو سلطان نے اس کے عقب سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا۔ خوبصورت لگ رہا ہوں نا؟ اسے دیکھ کر عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کون کون سے رنگ چمک رہے تھے۔ لپسٹک اتنی زیادہ تھی کہ وہ کمانڈر سیف گارڈ کے کارٹون ڈرٹی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ لمبے بالوں کی آڑی ٹیڑھی پونی اور نہ جانے کیا کیا۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ سلطان نے بال سنوارے۔ واہ واہ آیت، براوو، آپ نے تو آج ماما کو بھی ہرا دیا۔ وہ ہنسی ہوئی قریب آ بیٹھی۔ بابا گڑیاں ہیں، میری گڑیاں۔ سلطان کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ جی بالکل بابا، ہم دونوں کی پیاری سی گڑیاں ہیں۔ اس ننھی سی لڑکی کی مسکراہٹ معصوم تھی۔ وہ مزے سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنے چہرے کا ستیہ ناز کروانے میں مصروف تھا۔ اب یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھ کر آؤ، چلو جلدی سے۔ عشا کی آواز پر سرس بات میں ہلاتی بیڈ سے اتری، دھیرے دھیرے چلتی ایک ایک چیز اٹھاتی اپنی جگہ پر سیٹ کر رہی تھی۔ وہ سلطان کو دیکھ مسلسل ہنس رہی تھی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ عشا نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے سے پھیر کر اپنی کنپٹیوں پر رکھے۔ وہ بڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی۔ اب یقین ہو گیا کہ واقعی خوبصورت لگ رہا ہوں۔ وہ ہنسی۔ ناشتہ کرتے وہ بیزاری سے کبھی ان دونوں کو تو کبھی کھانے کو دیکھتی۔ سلطان ہمیشہ کی طرح رغبت سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور آیت اپنا دلیا مزے سے کھانے میں۔ پتہ نہیں کب مجھے اچھا کھانا بنانا آئے گا۔ اللہ جی پلیز مجھے ٹھیک سے کھانا بنانا آ جائے، کل کو بیٹی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ سلطان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم شاید بھول رہی ہو وہ بیٹی کس کی ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہمارے لیے یہ کھانا دنیا کا بیسٹ کھانا ہے۔ مجھے ڈھونڈ کر دکھاؤ کوئی اس دنیا میں جو اس سے بہتر اور اس جیسا کھانا بنا سکے۔ وہ ہنسی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے پیشانی سے ٹیکے تو آیت نے ایک دم سے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا اور اپنی ننھی سے پیشانی سے ٹیک دیا۔ وہ سلطان کی ہر حرکت اپناتی تھی۔ دونوں نے بڑھ کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سلطان کے خوبصورت محل میں جمی رونق ہادی اور آئیگل کی خوشی کو بھرپور طریقے سے نمایاں کر رہی تھی۔ ہولی اپنے مصنوع پاؤں سے اب ٹھیک طرح چل پاتی تھی۔ بہت زیادہ ٹھیک تو نہیں، مگر اب وہ اپنے پاؤں پر چل سکتی تھی۔ عشا کے ہمراہ کچن میں چھوٹے موٹے کام کرواتی وہ خوش تھی۔ سلطان کے ہمراہ یگیت ہادی اور آئیگل گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔ آیت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سب بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بہت جلد باتیں کرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح باتیں کرتی تھی۔ عبدالباری، ایک بلند آواز گونجی ہی کہ سلطان کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی۔ سلطان نے گردن گھما کر دیکھا۔ وہ دونوں آپ آپس میں باندھے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم سے، وہ تیز تیز بولا تو وہاں موجود ہر انسان نے اپنی ہنسی دبائی۔ بات سنیں ذرا، یہ کہتی ہوئی وہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی شامت دور سے ہی دیکھ چکا تھا۔ سلطان نے جھک کر کچن میں جھانکا۔ فرائی پین ہاتھ میں تھامے وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آپ میری باتیں بھولنے بھی لگے ہیں نا اب؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے میں نے کچھ کہا تھا، بس 10 منٹ پہلے، اور آپ مزے سے بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں۔ وہ فائر پین بلند کرتے اس کی طرف بڑھی۔ سلطان نے ایک دم اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ پیچھے جھک کر ہاتھ میں دیکھ رہا تھا۔ انہیں جانے دو، پھر پھاڑ لینا میرا سر فرصت سے۔ وہ کس خوشی میں؟ ارے یار دوستوں میں تھوڑی سی عزت ہے، بس تھوڑی سی۔ ہاں عزت آپ کی تو میں۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ سلطان نے جھک کر اسے تھامتے ہوئے ہوا میں اٹھایا۔ اس پیارے سے چہرے پر مصنوعی سا غصہ دیکھ کر وہ گھبرایا۔ میری پیاری گڑیا، تمہاری کوئی بھی بات کبھی نہیں بھول سکتا۔
आई स्वेयर। सुल्तान ने इस नाजुक से रुखसार पर लब रखी तो टन की आवाज़ बुलंद हुई। उसे अपने सर की पुष्ट पर फ्राई पैन की ज़रब महसूस हुई। वो हंस दिया। वो अभी भी उसे गुस्से से देख रही थी। वो मुस्कुराता हुआ इसे आज़ाद करता किचन से जा चुका था। अपनी प्यारी बीवी की मासूम सी फरमाइशें पूरी करता वो शाम के वक्त लौटा था। सुल्तान ने घर दाखिल होते आयत को पुकारते उसे आवाज़ दी। वो कमरे से निकलकर उसकी तरफ ही आ रही थी। वो आयत। सुल्तान ने उसे अपने हिसार में भरा। वो मुस्कुराया। आयत कहाँ है? वाइगुल के साथ गई है। सुल्तान ने एक निगाह वक्त पर दौड़ाई। उसे ले आता हूँ। ईशा ने इसका बाजू थामा। अरे नहीं, आइगुल कह रही थी वो कल उसे छोड़ जाएगी। कल क्यों? आप जानते हैं ना उसे वहाँ रहना पसंद है। और मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? ईशा ने आईब्रो उठाते उसे देखा। क्यों? मैं नहीं हूँ क्या यहाँ? आपका तो मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। अब अब मेरे पॉइंट्स कम हो गए हैं क्या? वो मुस्कुराया। तुम तो जिंदगी हो। वो मुस्कुराता हुआ उसे बाहों में उठाए चल दिया। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं। वो शरारी सा चेहरा बना गई। अपनी पसंदीदा जगह इस झूले पर धीरे धीरे झूलता वो मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट में सुकून और खुशियाँ थी। सुल्तान, नहीं अब्दुल, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था। वो एक आज़ाद सांस लेता था। वो गहरी और सुकून भरी नींद सोता था। वो एक आम इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारता पुरसुकून था। ईशे, जी, मैं खुश हूँ इस ज़िंदगी से। तो मुझे मुकम्मल करती हो। वो मुस्कुराती हुई अपनी बाहें फैला गई। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए खुद को इस नन्ही सी आगोश के सुपुर्द किया। वो पुरसुकून हुआ। अपने इस बालों में नाजुक उंगलियां महसूस करता आंखें मूंद गया। मैं इस सुकून में मर सकता हूँ, खुशी से। उसे अपने बालों पर हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। यू आर माई सेफ जोन। वो मुस्कुराते उसके बड़े हुए बालों को कभी दुरुस्त करती तो कभी उलझाती। अब्दुल, आपसे एक बात पूछूं? तो पूछ लो। उसने गहरी सांस भरी। आप जानते हैं, जन्नत में हर मर्द को ढेर सारी हुरें मिलेगी। ऐसी बातें भला कौन भूल सकता है? वो शरीर सा चेहरा बनाया तो उसे अपने बालों पर खिंचाव महसूस हुआ। तो तो क्या वहाँ इन सब में मुझे ढूंढेंगे? वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें क्यों ढूंढूंगे? क्यों भला? इतनी सारी तो होंगी ना मेरे पास पहले ही। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। सच्ची? वो खामोश हुई। हाँ, आप मुझे क्यों ढूंढेंगे भला? मैंने सुना है हूरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी और वो बहुत मोहब्बत करने वाली होंगी। वह मुस्कुराहट दबाए हुए था। कुछ देर वो खामोश रही। सुल्तान ने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा। पागल लड़की, ढूंढा तो नहीं जाता है जो ना खो जाए। और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा ना वहाँ। जो दुनिया में आपकी बीवी हो वो जन्नत में भी तो आपकी बीवी होती है। इतना नहीं जानती क्या? जानती हूँ। तो फिर? और तुम तो इन सब हूरों की सरदार होगी, मेरी बीवी। और तुम इनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली होगी। और वहाँ मुझे तुमसे एक दफ़ा फिर मोहब्बत हो जाएगी। और वो मोहब्बत इस वाली से लाखों गुना ज़्यादा होगी। वो बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। मैं तो अपनी हूर को साथ लेकर जाऊंगा। वो मुस्कुराती उसके सिर पर बूसा दे गई। ईशे, चीची, अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो फिर मैं तुम्हें चुनूंगा। मुझे 1000 दफ़ा फिर ज़िंदगी मिले तो भी मेरी ख्वाहिश तुम होगी, बस तुम। तुम्हें देखता हूँ तो खुद को जिंदा महसूस करता हूँ। वो खुलकर मुस्कुराई। अब्दुल जी, अस्किम, आप जानते हैं आपके नाम का मतलब क्या है? मैं नहीं जानता। वो नफ़ी में सर हिला गया। अब्दुल बारी, मतलब रब का खादिम। आप तो हमेशा से ही उसके करीब थे, बस देख नहीं पा रहे थे। सुल्तान की आंखें नम हुई। वो उसे मुसलसल देख रहा था। हाँ, मैं हूँ। मैं इसका खादिम हूँ और हमेशा रहूँगा। वह मुस्कुरा दी। अपना रास्ता आप कभी मत बदलना। आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं इसमें बहुत दुश्वारियाँ हैं। यह आसान ना होगा। मेरा रब अपने बंदों को आजमाता है, एक बार नहीं, बार बार। वो देता है, फिर छीन लेता है। फिर वो देखता है कि क्या हम इसका शुक्र अदा करते हैं, क्या हम इसकी रज़ा में राज़ी होते हैं। कदम कदम पर वो अपने बंदे को आजमाइशों से नवाजता है। सुल्तान ने इसका हाथ थामा। तो मेरे साथ होगी ना? तो मैं दुनिया की हर आजमाइश का मुकाबला डट कर सकता हूँ, बिल्कुल एक खामोश समंदर की तरह जो अपने अतराफ उठती बड़ी से बड़ी लहर को भी अपने अंदर समाने की ताकत रखता है। तुम्हारा ये हाथ बस हाथ नहीं है ईशा, ये मेरी मुकम्मल ज़िंदगी का सहारा है। एक ऐसा सहारा जिसे थाम कर मैं सीना तान के इस दुनिया का मुकाबला कर सकता हूँ। अगर ये नन्हा सा हाथ मेरे हाथ में ना हो तो मैं एक तिनके के बराबर भी नहीं। एक कमज़ोर बुनियाद जिसे हवा का एक हल्का सा झोंका भी रेजा रेजा कर सकता है। वो गहरी सांस भरती इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गई। अगर मुझे फिर जिंदगी मिली तो मैं फिर तुमसे टकराना चाहूँगा। मैं फिर तुम्हारे मुकाबले हार जाना चाहूँगा। तुम एक इशारा करोगी और मैं फिर खुद को तुम्हारे मुकाबले गिराना चाहूँगा। तो मुझे फिर इडियट कहोगी और मैं फिर तुमसे मोहब्बत कर बैठूंगा। सुल्तान की आंखों में नमी उभरी। वो शरीर सा मुस्कुरा रही थी।
ایشے چلو نا، ایک دفعہ پھر ٹکراتے، مجھے تم سے ایک دفعہ پھر محبت کرنی ہے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ آپ پاگل ہیں؟ ہاں میں ہوں، میں تمہارے لیے پاگل ہوں لڑکی۔ وہ مسکراتی اس کی پیشانی سے سر ٹیک گئے۔ سلطان نے اس کی آغوش سے نکلتے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ چل دی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی اس کے قدم بقدم چل رہی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی کو تکتی وہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پر رش کے مقابلے آج کچھ کم رش تھا، مگر وہاں کی روشنیوں اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک 23 سال کی لڑکی ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمع سڑک پر بے دہانی میں چل رہی تھی۔ چلتی ہوئی وہ گلی کا موڑ مڑی ہی کہ ایک مضبوط آدمی سے ٹکرا گئی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گرا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا سڑک پر کوئی ایسے چلتا ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی، جبکہ مقابل وہ لمبا چوڑا آدمی آنکھوں میں بے لوث محبت لے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں غصہ اور دہشت نہیں تھی، اور مقابل اس لڑکی کی آنکھوں میں اجنبیت کے بجائے ایک شرارت تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی لڑکی کی گری ہوئی چیز اسے اٹھا کر دینی چاہیے؟ وہ مسکراتا ہوا ایک گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس کا موبائل اٹھا کر اسے تھماتا گہری سانس بھر گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور سڑک پر تو بالکل اندھے ہو کر چلتے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے حجاب کا پلو جھٹکتی اس آدمی کے قریب سے گزری۔ سنیں محترمہ، اس کے چلتے قدم رکے۔ وہ پلٹی۔ آپ کے پاس میری ایک چیز ہے، اور اگر وہ واپس کر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھا جو شریر سا چہرہ بنائے اسے تک رہا تھا۔ میرے پاس آپ کی کون سی چیز ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں گے؟ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے اس سے مخاطب ہیں۔ یہاں سے ایک قیمتی چیز نکل کر آپ کی خوبصورت آنکھوں میں قید ہو کر رہ چکی ہے۔ سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا تو عائشہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے جناب۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قریب ہوا۔ اور وہ میرے پاس نہیں، وہاں نیچے سڑک پر گرا ہے، اٹھا لے۔ کہتی ہوئے مڑی تو سلطان نے اس کی کلائی تھامتے اسے اپنی جانب گھمائے۔ میری گرائی ہوئی چیز نہیں اٹھا کر دو گی؟ آپ کو اتنی تمیز تو ہونی ہی چاہیے نا کہ کسی لڑکی سے یوں مطالبات نہیں کرتے، وہ بھی انجان لڑکی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک تھی۔ مقابل ایک دفعہ پھر سے اپنا دل ہار چکا تھا۔ سلطان نے دل پر ہاتھ رکھتے اس کی ہتھیلی کھول کر اپنا ہاتھ اس میں جمایا۔ آپ کی گرائی ہوئی چیزیں ساری زندگی اٹھا کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلا۔ دیکھنے میں تو کافی ڈیسنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ لگتے ہیں، اور آپ کو پرپوز بھی کرنا نہیں آتا۔ وہ مسکراتا ہوا گردن جھکا گیا۔ بس ایک کسی کام میں کچا ہوں، آپ سکھا دیں کس طرح کرتے ہیں؟ میرے خیال سے گھٹنوں کے بل۔ اس کی بات کے مکمل ہونے سے قبل وہ لمبا چوڑا آدمی سڑک کے بیچوں بیچ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ 2 قدم فاصلے پر ہوئی۔ ایڈیٹ، وہ بلند آواز میں بولی تو سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچی۔ اس ایڈیٹ سے شادی کرو گی؟ وہ مسکرائی۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ پلٹی تو سلطان کی ہنسی بلند ہوئی۔ وہ مسکراتی ہوئی چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ کے پیچھے پیچھے چلتے تیز ہوئے۔ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پیاری محترمہ، لگتا ہے کہ آپ کو سیدھی طرح سے باتیں سمجھ نہیں آتی، تو میں اپنا طریقہ استعمال کر سکتا ہوں۔ اور کیا ہے آپ کا طریقہ؟ وہ جھکا تو عائشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، اتنی جلدی؟ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے آج کچھ مسنگ ہے۔ سلطان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا آج آپ میرا پیچھا مجھے کنونس کے لیے کر رہے ہیں، مجھے مارنے کے لیے نہیں؟ سلطان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مطلب؟ ارے پچھلی دفعہ تو آپ میرا پیچھا کر رہے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ ٹھیک کہا نا؟ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا۔ وہ مسکرائی۔ سلطان نے گردن کو ایک طرف کیا۔ کمینے انسان، مار ڈالوں گا تجھے۔ وہ دل میں بڑبڑاتا ہوا چل دیا تھا۔ سلطان نے اسے نیچے اتارا تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کس بات کا جواب؟ آپ تب مجھے مارنا چاہتے تھے نا، ہے نا؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ۔ وہ قریب ہوا۔ تم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر کیوں کر رہے تھے میرا پیچھا؟ وہ مسکراتا ہوا ایک قدم اس کے قریب ہوا تو اس کے وجود سے اڑتی وہ خوشبو خوبصورت سی عائشہ کی سانسوں سے ٹکرائی۔ وہ اسے محسوس کرتی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ دیکھنا چاہتا کہ کون ہے یہ لڑکی، کہاں سے آئی جس نے آتے ہی سلطان کی دنیا اتھل پتھل کر دی۔ آخر کون ہے یہ؟ جاننا چاہتا تھا تمہارے بارے میں۔ تمہیں مار نہیں پایا کیونکہ تم نے میرے وار سے قبل ہی مجھے گرا دیا تھا۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ سلطان نے اسے بازو سے تھام کر اپنی آغوش میں بھرا۔ اس رات نہ جانے کیوں مگر زندگی میں پہلی بار میرے قدم تھمے، میرے ہاتھ رکے اور میرا غصہ دھواں ہوا۔
वो करीब हुई। आपको मैं क्यों अच्छी लगी थी? वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अरे, अब हर लड़की तो सुल्तान को उसके मुंह पर बदतमीज़ और इडियट नहीं कह सकती ना। अस्तगफिरुल्लाह अब्दुल, मैंने आपको कब बदतमीज़ कहा? वो हंसा। तुमने कहा मुझे तमीज़ नहीं। अरे तमीज़ नहीं ये कहने में और बदतमीज़ दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, ऐसा क्या? वो इस बात में सर हिला गई। मगर अब मेरी डिक्शनरी में तो दोनों एक ही लफ्ज़ है। अच्छा, कहाँ से ली इतनी बेकार डिक्शनरी? वो खुलकर हंसा। उसे देखते वो हंसी तो सुल्तान ने खुद पर काबू खोते झुककर इसके नाजुक से लोगों को गिरफ्त में लिया। वो इसके कंधों पर हाथ रखे धकेल गई। अब्दुल, कुछ तो शर्म करे, हम इस वक्त सड़क पर खड़े। वो आंखें निकाले उसे देख रही थी। शर्म करूं मैं, वो भी तुमसे? डूब के ना मर जाऊं? वो खुलकर हंसती हुई उसके सीने पर सर टेक गई। कसम से आप में इतनी भी शर्म नहीं रही। वह मुस्कुराया। आई एम अ मुतमीन बेशरम। और कुछ? वो जोर से इसके सीने पर हाथ चढ़ गई। वो उसकी तरफ झुका तो ईशा ने इसके सीने पर हाथ रख के उसे रोका। अरे रे रुकें, पहली ही मुलाकात में आप तो रोमांस तक ही आ पहुंचे। बंदे में कोई हया होती है। वो एक पल में फासले पर हुई। वो खुलकर हंसा। तो चलो फिर शादी कर लेते। क्या अभी? नहीं तो क्या मौत का इंतजार है? सुल्तान ने झुककर उसे बाहों में भरा। वो हंसी और इसकी खूबसूरत आंखों की चमक इस्तकलाल स्ट्रीट पर जगमगाती रोशनियों को मात दे चुकी थी। सुल्तान ने इसका हिजाब उतारकर उसके सर पर घूंघट की तरह ओढ़ा। अपने ड्रीम हाउस की छत पर रेलिंग के करीब वो दोनों जमीन पर एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे। सुल्तान ने उसके हाथ थामे। ईशा अब्दुल बारी, क्या आपको अब्दुल बारी और पागल आदमी के साथ हक महर अब्दुल बारी की जान निकाह कबूल है? वो खुलकर हंसी। मुझे कबूल है और ता अब तक कबूल रहेगा। वो बुलंद आवाज में बोली। वो खुश हुआ था। मुस्कुराते हुए सुल्तान ने इसका घूंघट उठाते उसकी सुकूनदे पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स जब्त किया था। वो इसे खुद में कहीं छुपा चुका था। इन भूरी आंखों से उभरते अश्क उसकी एक नई जिंदगी को खुश आमदीद कह रहे थे। आंखें मूंदे उसे अपनी पेशानी पर टपकते आंसू महसूस हुए। उसने आंखें खोलते उसे देखा। वो मजबूर शख्स मुस्कुराता हुआ उसे तक रहा था। ईशा ने इसके आंसू पूछे। आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कौन सा अभी आपसे अपना हक महर मांग लिया? वो हंसा। किसी समझदार इंसान ने कहा था कि हर आंसू के पीछे तकलीफ या दुख नहीं होता, कुछ आंसू खुशी के भी होते हैं। जब खुशी हद से बढ़ जाए तो आंसू रुकने पर भी नहीं रुकते। वो शरीर सा मुस्कुराई। अरे वाह, अब तो बड़े हो गए मतलब? बस बात में सर हिलाया। हाँ, अब हो रहा हूँ धीरे धीरे। एक दिन तुम जितना ज़रूर बड़ा हो जाऊंगा और मैं बड़ा होकर अपनी बीवी जैसा बनूंगा। वो हंसी और अगले ही पल इसकी खिलखिलाती हंसी इस मजबूर शख्स की गिरफ्त में मुकीद हुई। वो इसके नाजुक वजूद को थाम कर अपनी आगोश में भर चुका था। इसकी बंद आंखों से निकलते आंसू इसके नरम से रुखसारों पर जज्ब हो रहे थे। सुल्तान की गिरफ्त मजबूत और वह पागल आदमी उसे छंद पल सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। सुल्तान को अपना दिल इसकी कैद तोड़कर बाहर आता महसूस हो रहा था। वो शख्स अपना वजूद इस भूरी आंखों की जनान के स्पुर्द कर चुका था। ईशा ने उसके कंधे पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। एक के बाद एक वो मज़ाहमत करती अपनी सांसें मध्यम होती महसूस कर रही थी। उसे आज़ाद करता वो खुलकर मुस्कुराया। पागल हैं आप, कसम से किसी दिन यूं ही मुझे मार डालेंगे। वो तेज तेज सांसें भर रही थी। सुल्तान की हंसी बुलंद हुई। अल्लाह अल्लाह, वो एक हाथ हवा में बुलंद करता बोला। वो गहरी सांसें भरती अपनी रुकी सांसें बहाल कर रही थी। तुम्हारा अब्दुल तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। हाँ मगर ये सुर्ख रंग, ये खटकता है मुझे, इसे सलामत नहीं छोड़ सकता। वो दोनों हाथों में छेड़ा छुपाते उसके सीने से चाप चिपकी। आप बहुत बुरे हैं। हाँ शुक्र है, कान तरस गए थे सुनने के लिए। दोनों की बैक वक्त हंसी बुलंद हुई। अब्दुल, अब ज़रा संभल के रहना मुझसे। वो किस लिए? मैं आपसे अपना हक महर कभी भी मांग सकती हूँ। वो मुस्कुराया। वो तो तब देते हैं ना जब शोहर और बीवी के बीच अलहदगी हो। तो नहीं तो कभी अगर बीवी का हाथ तंग हो तो वो तब भी मांग सकती हैं। वो खुलकर हंसा। इसके सर में चपत लगा गया। पागल लड़की, पागल आदमी की। सुल्तान ने गहरी सांस भरी और इसके मुंह से इस रब करीम के शुक्र में ढेरों दुआएं निकली। मोहब्बत करती हो ना मुझसे? आपसे किसने कहा? सुल्तान ने अपना हिसार तंग किया। तुमने खुद कहा था आप मुकर नहीं सकती। मैंने कब कहा भला? इस खूबसूरत दिन। वो खूबसूरत दिन था मगर वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन भी था। वो मुस्कुराए। अरे वो तो मुझे लगा मैं टपक जाऊंगी तो जल्दी जल्दी में जबान फिसल गई थी। सुल्तान ने उसके डिंपल पर दांत काढ़े। उसकी हल्की सी चीख बुलंद हुई। को जी। वो हंसी। वो इसकी पेशानी पर लब रखता उसे दुनिया से छुपा गया और अब उसे बस वही देख सकता था।
इस छोटी सी फूलों की दुकान में ज़िंदगी एक दफ़ा फिर से लौट आई थी। सुल्तान की हमरा इस प्यारी सी लड़की को देखती वो खुश थी मगर आतीता भी। आयत को थामे आयरगुल खातून उसे ढेरों फूलों के बारे में बताती टहल रही थी। वो दोनों कोनों में चरखे के करीब बैठे मट्टी के गुलदान बनाने में मसरूफ़ थे। तो ये आपका घर था? सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये मेरी माँ की शॉप थी। यहाँ मेरी ज़िंदगी की बहुत सी खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। वो मुस्कुराई। जानती हो, माँ हमेशा मुझे गोल शेप के गुलदान बनाना सिखाती थी, मगर मैं हमेशा स्क्वेयर शेप बनाता था। ओह, तो मतलब आप तब से ही टेढ़े मेढ़े हैं। वो हंसा। ईशा ने एक नज़र आयरगुल को देखा। वो शॉप से बाहर खड़ी किसी से बात करने में मसरूफ़ थी। ईशा ने पलटकर मिट्टी से भरा हाथ उसके चेहरे के गिर्द रखते मुकाबल लबों पर एक प्यारी सी मोहर जब्त की। सुल्तान की आंखें एकदम से ही बंद हुई और वो साकत सा हुआ था। एकदम ही वो अपनी गिरफ्त ढीली करता धड़ाम से पीछे जा गिरा। वो खुलकर हंसी। उसने झुककर इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। तो मुझे मार डालोगी लड़की? यहाँ वार करती हो सीधा? यहाँ। सुल्तान ने दिल के मकाम पर हाथ रखते कहा। वो मुस्कुराता हुआ दोनों हाथों में चेहरा छुपा गया। वो माथे पर हाथ रख गई। ईशा ने इसका बाजू थामे उसे अपने मुकाबले खड़ा किया। पागल आदमी। शॉप की घंटी बजी तो दोनों ने बैक वक्त मुड़कर देखा। वो स्ट्रॉन्ग शख्स आयत को थामे दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। अरे उस्मान बे, खुश आमदीद। वो चहक कर बोली तो मुकाबले की आंखों में मुसरत की लहर दौड़ गई। मरहबा। वो इनसे कुछ ही फासले पर आ खड़ा हुआ। मरहबा। सुल्तान ने सलाम करते झुककर आयत की पेशानी छुई। खुश आमदीद। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई। उस्मान बे की मुस्कुराहट गहरी हुई। मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, सोचा दोस्तों से मिल लो। सुल्तान उसके बगल गिर हुआ तो ईशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। खुश और सलामत रहें। वो आयरगुल की तरफ मतवज्जो हुई तो उस्मान बे सुल्तान से कुछ ज़रूरी बात डिस्कस करता आयत को उसे थमा गया। उसकी आंखें बिल्कुल तुम जैसी हैं सुल्तान। वो मुस्कुरा। अब्दुल, इट्स अब्दुल बारी। उस्मान बे की मुस्कुराहट गहरी हुई। सलामत रहो अब्दुल बारी। वो इसके कंधे पर थपकी देता वहाँ से चल दिया। वो एक कदम बढ़ा ही था कि उसे अपने कंधे पर सुल्तान का हाथ महसूस हुआ। उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे। उस्मान। वो पलटकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, किसी खूबसूरत दिन या फिर किसी बदसूरत दिन। सुल्तान ने लंबी सांस भरी। वो एक नज़र उसे देखता मुड़ा और चल दिया। उस्मान बे के कदम चले तो चलते ही गए। वो रुके नहीं। वो पलटा नहीं था। अगर वो रुक जाता, वो पलट जाता तो उस्मान ख़्याल ने हंसी अपनी आखिरी सांस भी खो देता। तुम मेरा वो ख्वाब हो जिसकी ताबीर मैं कभी नहीं चाहता। वो मुस्कुराया और उसके कदम बढ़ते गए जब तक वो मध्यम सी हंसी उसकी समातों से और वो सफ़ेद रंग उसकी हदूद से बाहर ना हुआ हो। सुल्तान के हाथों समेत उसकी सफ़ेद शर्ट भी मिट्टी से लिपेट चुकी थी, मगर उसे अफसोस नहीं था। उसके हमरा एक दफ़ा फिर अपनी बीवी की पसंदीदा जगह के बाहर मौजूद था। ग्लाटा टावर। दाएं तरफ नस्ब कैफ़े में इसकी हमरा बैठी हुई हमेशा की तरह अपना पसंदीदा सीन सेंट सेबेस्टियन केक खाने और इस समेत अपनी प्यारी सी बेटी को खिलाने में मसरूफ़ थी। वो टेबल पर बैठी कभी अपनी प्यारी सी माँ को देखती तो कभी अपने बाप को जो हर किसी से बेनियाज बस अपनी वाली को ही तकने में मसरूफ़ था। ईशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। ज़रा वहाँ अपनी फ़ैन को भी देख लें। सुल्तान ने एक नज़र अपनी बेटी को देखा। बाबा। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाए बैठी थी। सुल्तान ने वो नन्हा सा हाथ थाम कर लबों से लगाया। ईशा ने इसका हाथ थामते उसकी शहादत की उंगली से वो ताज वाली अंगूठी उतारी। वो उसे बगौर देख रहा था। वो लकड़ी के टेबल पर इस अंगूठी का सरा रगड़ कर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। वो अपना कास्ब सर अंजाम देने के बाद उस अंगूठी वापस उसे पहना चुकी थी। सुल्तान ने उसकी कार्रवाई पर नज़र डाली। इस मुख्तसर से टेबल के एक सिरे पर वो मुकम्मल नाम तहरीर था। ईशा अब्दुल बारी। वो मुस्कुरा दिया। ये हमारी जगह है। हाँ बिल्कुल, ये हमारी ही जगह है। अब सब देख सकेंगे। वो हंसी तो सुल्तान ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। आयत को उठाता उसका हाथ थामकर कैफ़े से बाहर निकला और वह इस रोशनी, सुकून और खुशियों से भरपूर घर की तरफ चल दिया और उसकी ज़िंदगी उसकी बिनाई उसके कदम ब कदम मुस्कुराती हुई चल रही थी। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर से ट्रैक पर आ चुकी थी। इस कठोर और बेरहम इंसान को एक और मौका दिया जा चुका था, मगर ये ज़िंदगी है, उसे ट्रैक से उतरने में देर नहीं लगती। यहाँ पर कहानी का इख्तिताम नहीं होता, यहाँ से आगाज़ होता है अक्स सुल्तान का आगाज़, एक नई दास्तान का, एक नई तड़प, एक नए जुनून का, एक नए बदले और नई आजमाइश का, कुछ नए राज और नई पहेलियों का। सुल्तान जा चुका था मगर उसे लूटना था, एक अक्स बनकर। आखिर को यही उसकी दुनिया थी, बेरहम, तलखी और तड़प से भरपूर। उसकी धाड़, उसकी वहशत, इसका जुनून कुछ वक्त के लिए थमा था, मगर ये तो बस आगाज़ था। A beginning of a third and obsession.
سلطان بھی ریٹرن